Welcome to Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar. Today is very much exciting day because the two semi-finals in this ABS Developers National T20 Cup will be played here. The first semi-final match will be played between Karachi Whites and Sialkot. Karachi haven't played there any match since 9th March. Right, in a big game, Sialkot region, they won the toss and decided to have a bat first. With overcast conditions, he'll look to swing the ball. As Asif Yaqub says, let's play. Not much pace, but the angle and the length. You expect that from Mir Hamza, somebody of his caliber. That's nice. Up and over for 6. With some ease, with some comfort. Yeah, he's a superb player. Great talent, and still needs to go a long way. This one was in his zone. He has got long levers. He's a tall boy, long arms. Third up, point at the boundary line now. As he goes, bang, straight. Fantastic hit. As easy as you like it. It's the ease with which he strikes the ball. And the amount of power he generates in that flow, which is lazy one, but it takes the ball beyond the boundary. He pulls that one this time. Mohsin Riaz on the other end. Just pulled it for 6. Yeah, Mohsin joins in on the action. He was missing out on a couple of occasions in the previous over. This time it was a bad delivery. The experience of Mir Hamza, you expect better. This was asking to be hit. Where did that came from? Wow, wonderful hit. This is exceptional batting from these two. With some ease, he sent it a long way towards mid-wicket for 6. Third 6 of the over. Oh, he's up in the air. Haroon Arshad settling under and taking it. First wicket for Karachi Whites. It went up really high. There's no problem with the front foot of the bowler. It's a legal ball. And Mohsin wanting to go big. Top edge going sky high. And it was well judged by the fielder Haroon. Mohsin, after striking a couple of 6s, he goes for 15. Sialkot 31 for 1. No one there. All you need to do is find the gap and find the boundary after that. But no, not this time. It's gloriously hit. Gorgeous shot for 6. Abdullah Shafiq hitting covers. You can guarantee elegance. And this is how he played that stroke. Perfect execution. And getting the distance as well. Beautifully struck this time, but there is a fielder over there who will not make any mistake. He wanted to hit it inside out, didn't get it in the direction that he wanted, and Karachi get their second wicket, a very important one, that too, of Abdullah Shafiq. Yeah, it was a very good catch. And the golden arm, Danish Aziz, were brought in to do this, and he's done that. Abdullah Shafiq, another failure for him. 44 for 2. Karachi doing really well, putting back things. Inside edge, चौका होगा. बहुत ही अनलकी स्टार्ट है ये मोहम्मद उमर के लिए. बॉल में कुछ भी बुरा नहीं था, लाइन अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, लेकिन ये जो थिक एज था, इससे बाउंड्री हासिल हुई बैटर्स को. ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर चक्के के लिए. वो कहते हैं ना, था इसका इंतजार, वो शाहकार आ गया तो अरम के बल्ले से ही छक्का लगा है.
पुल जोरदार है, इंतजार में थे, दूर और बहुत दूर, छक्का। एक लम्हे के लिए ये एहसास हुआ था कि शायद गेंद ऊपर ठहर गई, लेकिन वो आगे जाती गई और इस तरह एक बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए हसन और स्कोर को आगे ले जाते हुए। So plenty of options as far as spin is concerned. This one up and over. And, oh no, better effort was required. It was just a little short of him, but yeah, Danish Aziz thought that he's in business. Yes, he was looking itchy. A bit of a nothing shot. He's missed out on that, Aram. An opportunity to get a big one. And this was a ball from behind the stumps, almost adjacent. His front foot was to the stumps, and Aram wanting to go big and cleverly bowled. Full marks to the bowler Asghar on this occasion, and in the end he just lost it completely. 40 well scored runs of 33 deliveries. Sialkot lose their third at 86. Cuts handsomely for a boundary. There was a fielder placed, but he placed it so beautifully well that it went for a 4. Has it got the distance? Yes, it has. Big one, over long on for 6 by Asad Hafiz Bhatti. Another big hit, another 6, and this is 6 number 8 in this innings, as there have only been 3 boundaries, 4s, and there's 8 6s been hit. Well, this is off the back foot, and this is over the fielder. Another 6. This is a very, very strong shot. Not many batters fancy hitting it from the back foot over long off. This is the power of Hasan Nawaz. Down the track, over the head. Oh, that's taken. It's a great catch by Umair bin Yusuf. It has surely stunned Asad Hafiz, but he thought he's middled it and placed it well also. He's disappointed. Yeah, this can happen when you're looking for the extra push and you ask a set batter to go after the bowling, and you lose that batter, and the next one comes in, hits a boundary, an odd one, and then gets out, then you certainly come under pressure. And this is now what the Sialkot team are going to face, the extra burden on Hasan Nawaz, as Hasan Hafiz Bhatti goes after scoring 8 runs. Sialkot 110 for 4. And the next ball has been flicked towards deep square. He's looking for the second, and it's going to be an easy run out. What sort of a call was that? And why didn't Hamza Nazar stop him? It was so casual, and in the end he's run out easily. It was such a poor mix-up between these two. Hamza Nazar goes scoring 215. हाँ, यहाँ पर हसन नवाज ने खेला, मिस टाइम कर गए और फील्डर बॉल के नीचे, जहां पर उमैर बिन यूसुफ कोई गलती नहीं करते हुए तक बड़ी शानदार फील्डिंग और बड़ी विकेट यहाँ पर असगर ने हासिल की, हसन नवाज की। बिल्कुल, बहुत ही शानदार स्पेल है असगर का। इस मैच में आज उनको खिलाया है, सीनियरिटी दी है और उन्होंने पूरा उसका शो किया है, अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर। हल्का सा स्लाइटली सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल था जिसको बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे और एक कंफर्टेबल कैच किया उमैर बिन यूसुफ ने। तो हसन नवाज जाना होगा, 43 रन बनाए इन्होंने 118 पे 6। तबाह पेश के लिए गेंद मिड ऑफ के जानिब जाएगी 4 रन के लिए। बाउंड्री मिली उसामा मीर को। तबाह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसको खेलने में कामयाब हुए। एक और शानदार स्ट्रोक है, पर 4 रन मजीद मिल जाएंगे। उसामा में ये एबिलिटीज मौजूद है, किस तरह के स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, गेंद हवा में और लगता है ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी 6 रन के लिए। और आखिरकार अली ने भी अब अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया है। ये शानदार छक्का है। स्लोअर गेंद है, यहां पर मिड ऑफ की जानिब खेलते हुए फील्डर को क्लियर कर जाएंगे। एक और शानदार छक्का अली के बल्ले से,
वेरिएशन की जरूरत थी, अच्छी करवाई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट दे दी बैटर को। अली जो कि ऑलरेडी इसी ताक में थे कि कहीं उनको मौका मिले और वो अपने बाजू खोल सकें, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है मोहम्मद उमर ने उन्हें। इस मरतबा फुल पिच डिलीवरी थी मीर हमजा की जानिब से, उठा के खेला है पॉइंट के फील्डर के ऊपर से, तो 4 रन मिले। इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए फाइन लेग के ऊपर से। इस वक्त जरूरत है सियालकोट को, उसामा मीर को इस तरह की बाउंड्रीज की। इस मरतबा ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद है, यहां से फील्डर बॉल के नीचे आए और असगर ने कोई गलती नहीं की, तो आखिरकार कामयाबी मिल गई है मीर हमजा को। उसामा मीर वापस लौटेंगे। बहुत अच्छा कमबैक किया हमजा ने इस बॉल में। इससे पहले यॉर्कर करवाई, लेकिन समझ लिया कि यहाँ पे ट्रिक क्या है, स्लोअर वन किया, क्योंकि उसामा स्लोअर वन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। एक मरतबा शॉट लगाना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लियर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके और शानदार कैच लिया असगर ने सामने डाइव मारते हुए। तो उसामा मीर को जाना होगा। 19 ही रन बनाए इन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया, 155 7 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर। उठा दिया है इस गेंद को, ये शानदार टाइमिंग है। ये गेंद जाएगी डीप मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए। निहायत ही उम्दा स्ट्रोक अली के बल्ले से। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट था। मोहम्मद उमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अली इतना अच्छा शॉट खेलेंगे उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट। कुछ भी वेरिएशन नहीं थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं था इस बॉल में। एक लेंथ बॉल थी लास्ट ओवर में, ये फ्री गिफ्ट होता है किसी भी बैटर के लिए। और इस बार अभी स्लोअर गेंद है, यहां से फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और अब्दुल्ला फजल ने यह शानदार कैच लिया डीप स्क्वायर लेग पर। उमर को दूसरी कामयाबी मिली। बहुत ही जबरदस्त कमबैक मोहम्मद उमर की जानिब से। इस मरतबा फिर स्लोअर वन किया और लेंथ पे किया, जिसको खेलना चाहते थे उठा के जोर से, लेकिन फील्डर मौजूद थे अब्दुल्ला फजल। बड़ा कैलकुलेटेड कैच किया, उनकी अवेयरनेस बड़ी अच्छी थी, उनको पता था कि बाउंड्री रोप कहाँ है। तो अली अफजल खुजानो का बहुत ही शानदार बैटिंग की, उन्होंने 13 बॉलों पे 26 रन बनाए। तो पहली स्लोअर गेंद है, यहां से देखते हैं आउट हो जाएंगे या नहीं। एक और विकेट मिल गई, एक और कामयाबी मिली उमर को। हर कोई यही चाह रहा है कि वो बस उठा के खेल दे बॉल को और 6 रन के लिए खेल दे, लेकिन यहाँ पे हर कोई ये कैलकुलेशन मिस कर रहा है कि अगर हम ग्राउंडेड शॉट्स खेलें, गैप्स में खेलें, 2-2 रन लेने की कोशिश करें, तो शायद हमारे स्कोरबोर्ड पे कुछ ऐसे रन आ जाएं जिनको हम डिफेंड कर सकें। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सियालकोट के बैटर्स की, कि सिर्फ यही सोच कर आएँ कि हमने बाउंड्रीज लगानी है। तो पहली ही बॉल पे शोएब अख्तर को जाना होगा वापस, कोई रन ना बना सके। 163 9 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त आप बड़े ड्रामाई अंदाज के साथ स्ट्रोक को खेले 1 रन के लिए और 165 रन बनाने में कामयाब हुए है सियालकोट रीजन की टीम। प्ले की कॉल के अब हुई है और आसिफ याकूब नॉन स्ट्राइक करंट पर हैं। और ये जैसे आप जिक्र कर रहे थे शोएब का, शोएब अख्तर पहली गेंद करेंगे सीधी पॉइंट पर। फुल ब्लडेड ये कट थी, कलाई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, चौका होगा। अब फील्ड आपकी ऑफ साइड पर है, 4 फील्डर आपने सर्कल में ऑफ साइड पर रखे हुए और गेंद आप मिडिल लेग पर लेग स्टंप से बाहर कर रहे हैं, तो ऐसे ही होना था। जोरदार पुल ऑन साइड पर, जबरदस्त छक्का है ये इतनी आला शॉट थी और इसमें इतनी कन्विक्शन थी, इतना कंट्रोल था और इतनी टाइमिंग और ताकत थी कि गेंद पलक झपकते ही बाहर चली गई, दूर, बहुत दूर। एक और छक्का है इस बार। लुत्फ की बात यह है कि गेंद पर नजर रखी है, नजर जमा कर रखी है और लगातार ये उसी जगह पर गया जहां पर पहले गया था। तो साउथ छक्के पर छक्का लगाते हुए
बिल्कुल, इस मर्तबा फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको शानदार तरीके से खेला है। इस मर्तबा फर्क सिर्फ इतना था कि ये थोड़ा सा फाइन था पहले से। वही कंट्रोल, वही कमांड और वही एग्जीक्यूशन। ये बेहतर शॉट है और बल्कि बेहतरीन है, 6 रन के लिए बाहर। अब कोशिश की लेकिन ये बहुत तेज थी और बहुत ऊंची भी थी। साइडवेज आए, अच्छे तरीके से गेंद को देखा, पिछले कदम पर पूरा वजन डाला और इस गेंद को वहीं पहुंचाया जहां ये गेंद वो पहुंचाना चाहते थे। साउथ शकील ऑफ साइड पर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाएगी चौके के लिए। इस बार स्विचली टाइम किया, जगह बनाई और गेंद को धकेल दिया पॉइंट और कवर के दरमियान से 4 रन के लिए। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस बार जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर और एक और चौका। अब तो कमाल कर दिया है इस बार शौक शकील ने। छक्का छक्का, डॉट बॉल, छक्का, फिर चौका, फिर चौका। और हमजा किस गेंद को खेल दिया है ऊंचा ऑफ साइड पर, 2 फील्डर पीछे। ये कोई ऐसा कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था, 4 रन हो गए। आउटरेज लगा और फील्डर सर पर दौड़े लेकिन गेंद बदतरीज लुढ़कती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। पुल ऊंचा स्ट्रोक है और ये और छक्का। ये छक्कों की तो जैसे बरसात है और इस बार जिस तरीके से इसको हिट आउट किया अब्दुल्ला ने, दैट वाज रियली अ ट्रीट टू वॉच। ये जबरदस्त शॉट है, ताकत वाला, टाइमिंग वाला और दिल को खुश करने वाला शायकीन क्रिकेट के लिए। अब्दुल्ला अब खुलकर खेल रहे हैं। ये जबरदस्त छक्का और इसके साथ ही अब ज़ाहिर है कि मजीद आगे रन बढ़ते हुए 56 हो गए हैं। लगता है कि काम बड़ा आसान होगा कराची वाइट्स के लिए, लेकिन ये ग्रेट लेवलर है, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ये बेहतरीन शॉट और इन दोनों में जो बेफिक्रापन है वो लाजवाब है। इस गेंद को जोरदार से कैसे ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर। ये मेरे ख्याल में आज जो बहुत अच्छी शॉट्स खेले गई हैं उनमें से एक था। पुल ऑन साइड पर, एक और चौका। इस तरह ये जो मैं बेफिक्रेपन की बात कर रहा था, लग नहीं रहा कि ये सेमीफाइनल हो रहा है और एक बड़ी टीम के मद्दे मुकाबले कराची वाइट्स की टीम लगता है कि वन साइडेड अफेयर्स हैं। Cuts through the gap before. They continue the onslaught, these two batters. At the moment, Sialkot are way behind in this game. And this is a big one. Once more, it's a straight hit. And a couple of bounces before it goes across the rope. A 4 to finish the power play. 76 for no loss, Karachi. Up and over. There is a fielder. He won't be able to get to that. You could only see it go over his head for 6. Abdullah Fazal this time. It's raining sixes at the moment. Another biggie. Far, very far from the fielder. Over long on for 6. The matchup not quite working at the moment for Sialkot. Another big one. Is it big enough? No, not quite. Usama Mir has broken through. It's such an important wicket to get. South Steel. Perfect landing. It's a legitimate delivery, and South Shakil for a change, not middling one. And this time he finds the fielder in the deep mid-wicket that is. And he knew from the moment that he hit that this wasn't out of the middle. So South, after a quick breezy 45 of 21 balls, he has to return. Karachi lose their first at 92. And once again he looks to go for the big one, and I think he's just lost his balance, and the keeper, well, he is claiming a stumping. Decision is still pending. By the look, the excitement of the wicketkeeper, he thought that he's got the man. And this is where it all matters. Shan drags his back foot over the line, and then it doesn't get back, and he'll have to go. That's a simple decision for the third umpire. The keeper does a good job, alert to the occasion, and
Shan's fury comes to an end without being effective at all. That is a brilliant half century from a young batter of Karachi Whites, second in this tournament. But this one will be right up there because it's been in a semi-final filled with glorious hits. One for the team. And again, it goes straight. Straight enough for four. For a second, the fielder at long off was in business. That's what probably Usama is asking the fielder to be a little more quicker than he was. And this one is played in the cow corner, and it will go the distance. Another 6. Yeah, this boy is pure gold. The way he's hitting them, no fuss about it. No hassle, just hustle. That's how easy he's done that. Look at those expressions. He knew it that he's hit it miles. सुफियान के सामने बैटिंग कर रहे हैं और ये बॉल कर दिया है. शानदार डिलीवरी. सुफियान मुकीम विकेट लेने में कामयाब हुए. जरूरत है सियालकोट को. बिल्कुल बहुत ही शानदार बॉल था, फुल पिच बॉल था जिसको बिल्कुल ही क्रॉस बैट के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी वेट ट्रांसफर नहीं किया और बहुत मुश्किल था इस बॉल पे इस तरह का शॉट लगे अगर वेट ट्रांसफर कर भी लेते. तो मेहर बिन यूसुफ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इनिंग नहीं खेल सके. 4 ही रन बनाए, 114, 3 विकेटों के नुकसान पर. सियालकोट की टीम को यहां पर फिर से हाथ खोलने का मौका मिला. फील्डर को मेहनत करनी होगी गेंद को रोकने के लिए और गेंद निकल गई 4 रन के लिए. सामा मीर नाखुश दिखाई दे रहे हैं. बिहेवियर चेंज किया लेकिन ये शानदार टाइमिंग है. इस बार गेंद जाएगी ऑन साइड की जानिब. ये धनधनाता हुआ छक्का अब्दुल्ला फजल के बल्ले से. कमाल का स्ट्रोक है. ये इनकी स्ट्रेंथ है, फुल पिच बॉल पे बहुत खूबसूरत खेलते हैं और आप देखें ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ टाइम किया है, कोई शॉट में पावर नहीं लगाई. एक और शानदार स्ट्रोक. इस बार गेंद मिड विकेट की जानिब. एक और लंबा छक्का. कमाल की बैटिंग करते हुए अब्दुल्ला फजल. ये तो शॉट ऑफ द डे कह सकते हैं इसको. बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये. इतनी आसान बॉल नहीं थी लेकिन खेला उसको बहुत खूबसूरत तरीके से. ख्वाजा नाफे ने खेल दिया है. गेंद हवा में है. फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और यह शानदार कैच. तैयब ने कोई गलती नहीं की और अब कैच अपने हाथों में थमाते हुए. जरूरत ही नहीं थी इस शॉट की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले अब्दुल्ला फजल इस ओवर में 2 बाउंड्रीज ले चुके थे. उसामा मीर जब उनको बॉलिंग कर रहे थे तो उनको बॉल अंदर आ रहा था, लेकिन ख्वाजा नाफे को ये बॉल बाहर निकला है जिसको अगेंस्ट द ब्रेक ये खेलने गए हैं और कोशिश की कि डायरेक्ट 6 रन लगाएं और वापस पेविलियन चले गए वापस. और यह शानदार डिलीवरी, लेकिन फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं कि गेंद को रोक सके. 4 रन मिल जाएंगे अब्दुल्ला को. जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की, उनके टाइम है इनके पास काफी ज्यादा. इस बार तबाह खेलने गए, मिस टाइम कर गए. यहां पर फील्डर बॉल के नीचे और अब्दुल्ला शफीक ने कोई गलती नहीं की. बड़ा जबरदस्त कमबैक करवाया है हमजा नजर ने अपनी टीम को. एक ऐसी विकेट ली है जो कि बहुत ज्यादा सेट बैटर थे, 88 रन पे खेल रहे थे और बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं थे इस शॉट के. बॉल हल्का सा रुककर भी आया, सामने खेलना चाहते थे दोबारा से, लेकिन बहुत ही शानदार बैटिंग की है. 88 रन बनाए, 41 बॉल्स का सामना किया. ये अच्छी गेंद है, थोड़ी लो रही, स्लो भी थी, पर टर्नमैन पे जाएगी. मोहम्मद अली गेंद को नहीं रोक सकेंगे और बाउंड्री मिली है. ये लकी बाउंड्री कह सकते हैं. कोई किस्मत ही जिता सकती है और ये जरूरत नहीं. ये गेंद फिर से रिवर्स स्वीप खेले गए थे हारून अरशद और यहां पर अंपायर ने बाहर का इशारा किया. 4 रन हासिल हुए. जिस तरीके बैटिंग करे हारून अरशद आगे आए और अटैक किया है इस गेंद पर 4 रन के लिए. यंगस्टर ने भी अपना वार दिखाया, 4 रन हासिल किए और डगआउट बड़ा खुश है कराची वाइट का. स्वाता उठा कर खेल दिया है. शानदार स्ट्रोक है. हारून अरशद ने यहां पर कराची ने ये फतह हासिल की
2023 में ये चैंपियन बने थे और ये तीसरी मर्तबा है कि ये फाइनल के लिए रसाई हासिल कर रहे हैं। ये शानदार परफॉर्मेंसेज है कराची वाइट की टीम, जिस तरीके से इन्होंने इस मुकाबले में परफॉर्मेंसेज दिखाई, ये 5 विकेटों से फतह हासिल करते हुए मैच समरी की बात की जाए तो यहाँ पर हसन ने 43 रन बनाए थे और हमने 40 रन की बारी के लिए यहाँ पर ओवर ने 3 विकेटें हासिल की हैं। और दूसरी साइड में देखें तो अब्दुल्ला ने 88 रन की बारी खेली, साउथ ने 45 रन बनाए हैं और 3 विकेटें उसामा मीर ने हासिल की। एक विकेट हमजा और सुफियान के हिस्से में आई है। 167 रन बनाए 15.1 ओवर्स के दौरान और कराची ने ये फतह अपने नाम करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।